Hello class second students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you have read that earlier chapter and also did the following activity. So now let's move into the new chapter, that is chapter 7, Hansel and Gretel. Before starting this chapter, there is some warm-up activity. Match the following. You have to match. First one is gems. Gems are the colorful one, that is rubies, sapphire, etc. Okay, so you have to match gems with the colorful one. Next one is diamonds. Diamonds are the hard substance and they are very expensive. Okay, so you have to match diamond with that one, with the structure over there. And the next one is gold coins. Gold coins are also very expensive. Okay, so you have to match gold coins with the gold color. You can see over there the coins. Okay, so now let's start the chapter. Once upon a time, a brother and sister named Hansel and Gretel lived in a hut in the woods with their parents. The family was so poor that they could barely manage to get 2 meals in a day. Some days they would have to go hungry. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, एक भाई और बहन जो है, भाई का नाम है हंसल और सिस्टर का नाम है ग्रेटेल. ओके, और वो दोनों कहाँ पर रहते हैं? एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ. उनकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और वो मैनेज नहीं कर पाते कि उन्हें 2 meals इन अ डे मिल सके, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिन भूखा ही रहना पड़ता है. Since it was getting very difficult to feed 4 people, the parents decided to take the children deep into the woods and leave them there. So according to the plan, they took the children to the woods. Their mother told them, "Stay here. We are going to cut some wood. When we finish our work in the evening, we will take you home." So अब क्या होता है कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे 4 लोगों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम बच्चों को क्यों ना फॉरेस्ट एरिया में ही छोड़ देते हैं. एंड वो बच्चों को लेकर जाते हैं वहां पर. उनकी मम्मी बोलती है कि तुम यहीं पर रुकना, हम कुछ लकड़ियां काट के आ जाएंगे, फिर हम तुम्हें साथ में ही लेकर चलेंगे. ओके, evening went and then the night came, but their parents did not return. Hansel and Gretel tried very hard to find their way home, but they went deeper into the woods. They were very tired and hungry. अब शाम हो जाती है और रात भी आ जाती है और फिर वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स तो आए नहीं अभी तक. तो हंसल ग्रेटल क्या करते हैं, वो उठते हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि चलो हमें अपना घर का रास्ता ढूंढना चाहिए. पर वो जैसे ढूंढ रहे होते हैं वो और भी ज्यादा गहरे जंगल में खो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उन्हें भूख भी लगती है. वो बहुत ज्यादा हंग्री भी फील करते हैं. All of a sudden, Hansel saw a tiny house made of bread. The windows were made of chocolates and the roof was made of cakes and candies. The children ate till they were full. Suddenly they heard the footsteps of someone walking towards them. अब क्या होता है कि एकदम से हंसल जो है उसको एक छोटा सा घर दिखता है जो कि ब्रेड का बना हुआ होता है. ब्रेड यानी कि खाने वाली ब्रेड, और विंडोज जो है वो चॉकलेट्स की बनी हुई होती है, और जो रूफ है यानी कि जो छत है घर का वो केक और कैंडीज का बना हुआ होता है. तो वहां पर सो वो दोनों बच्चे जाते हैं जल्दी से और वो खाने लग जाते हैं जब तक उनका पेट भर नहीं जाता. फिर एकदम से उनको किसी की चलने की आवाज आती है जो उनकी तरफ आ रहा हो. An old woman lived in the house. She saw the children and invited them inside. She gave them a tasty meal and asked them to stay with her. फिर क्या होता है, एक बूढ़ी सी औरत आती है उनकी तरफ और वो देख लेती है उन बच्चों को ये सब खाते हुए और वो उसको उन दोनों बच्चों को इनवाइट करती है अपने घर के अंदर. देन वो उन्हें एक टेस्टी मील देती है खाने के लिए और उन्हें बोलती है कि तुम यहीं पर रह सकते हो. The old woman had been kind to the children, but actually she was a wicked witch who wanted to eat them. When the children were asleep, she picked up Hansel and locked him in a room. ओके, फिर यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो ओल्ड वुमेन है वो काफी ज्यादा काइंड नेचर की है, पर नहीं, एक्चुअली वो क्या है, वो एक विकेड विच है, यानी कि वो एक चुड़ैल है. ओके, जो कि उनको खाना चाहती है, जो उन दोनों बच्चों को खाना चाहती है. तो वो देखती है कि रात को ये दोनों बच्चे सो गए हैं, तो वो हंसल को उठा लेती है और हंसल को एक रूम में बंद कर देती है. The next morning, she asked Gretel to prepare a delicious meal for her brother to fatten him. She said that once Hansel was nice and chubby, she would eat him. तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो ग्रेटल को क्या बोलती है कि चलो तुम डिलीशियस मील प्रिपेयर करो ताकि तुम्हारा भाई जो है वो मोटा सा हो जाए, मोटा तगड़ा हो जाए, और जब हंसल जब काफी ज्यादा नाइस लुकिंग हो जाए, चबी चबी सा हो जाए, तो वो जो विच है यानी कि जो चुड़ैल है वो उसे खा सके.
After waiting a few days, the witch finally decided to eat Hansel. She fired up the oven and waited for it to heat. She asked Gretel to check if the oven was hot enough. She wanted to push Gretel inside it and kill her too. However, smart little Gretel pretended that she didn't know how to check the heat of the oven. The restless witch pushed her out of the way and peeked into the oven herself. Gretel quickly pushed the witch into the oven and shut the door. यहाँ पर क्या होता है कि कुछ दिन वेट करने के बाद अब विच फाइनली डिसाइड करती है कि मुझे अब हंसल को खा लेना चाहिए क्योंकि वो काफी मोटा तगड़ा हो चुका है। तो वो फायर करती है, अवन को स्टार्ट कर देती है और वो वेट करती है कि अवन जल्दी से गर्म हो जाए। फिर वो ग्रेटल को बोलती है कि चलो जाओ तुम अवन को चेक करो कि वो गर्म हुआ या नहीं। पर उसका प्लान एक्चुअली में क्या था कि ग्रेटल जब जाए और उसमें ऐसे देखे झांके तो वो उसको धक्का दे दे अवन की तरफ और वो ग्रेटल को वहीं पर मार दे। ओके पर ये जो ग्रेटल थी ये बहुत ज्यादा चालाक होती है, स्मार्ट होती है। ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है अवन को चेक करना। तो वो जो विच होती है वो उसे असाइड कर देती है, बोलती है कि चलो तुम हटो यहाँ से, मैं ही खुद चेक करती हूँ। तो विच जो है यानी कि जो चुड़ैल है वो खुद जाके वहां पर ऐसे चेक करने जा रही होती है, झुक के ऐसे चेक कर रही थी कि अवन गर्म हुआ या नहीं। तो ग्रेटल जो है उसको वहीं पर धक्का दे देती है और फिर धक्का देने के बाद वो जो डोर है उसको जल्दी से बंद कर देती है। Once the witch was dead, Gretel rescued her brother. Upon searching the witch house, they found gems, diamonds, and gold coins. They filled their pockets with them and headed back home. With great difficulty, they finally reached home. Their father, who was sorry for leaving his children in the forest, was happy to see them. Hansel showed him the gems, diamond, and gold coins they were carrying, and since that day, the family didn't have to worry about money or food ever again. So अब क्या होता है, ये जो ग्रेटल है जब वो चुड़ैल को ऐसे पुश कर देती है और वो बंद कर देती है अवन के अंदर, तो चुड़ैल की डेथ हो जाती है और फिर ग्रेटल जल्दी से चाहती है अपने भाई को रेस्क्यू करती है, भाई को छुड़ा देती है। फिर वो दोनों विच के घर को ढूंढते हैं, कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं विच के घर में। फिर उनको क्या मिलता है, उनको जेम्स मिलते हैं, डायमंड्स मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं यानी कि हीरे जवाहरात मिलते हैं और वो जल्दी से अपने पॉकेट में भर देते हैं ये सब चीजें। ओके जितने उनके पास आ सकते हैं। फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ जाते हैं, वो घर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उन्हें घर का रास्ता मिल जाता है फाइनली और वो घर अपने पहुंच जाते हैं। पर जैसे अपने घर पहुंचते हैं वैसे उनके जो फादर है वो उन्हें सॉरी बोलते हैं कि हम दोनों ने तुम्हें ऐसे जंगल में छोड़ दिया था और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद हंसल जो है वो अपने पापा को दिखाता है कि हमें जेम्स, डायमंड एंड गोल्ड कॉइन्स मिले। फिर उसके बाद से वो जो फैमिली है वो कभी भी गरीब नहीं रही। वो हमेशा उनको मतलब खाने के लिए फूड मिला और वो अच्छे से रह रही है। ओके, I hope student that you enjoy this story and your homework is you have to read this story once again and also do the warm up activity over there. Okay, till then students take care. Bye bye.